Students, please respond once more if you're able to hear me. I did not get your voice. Yes, Yes, sir. sir, you are audible. So we can hear you. Oh, thank you so much. Okay then. So all those students who are joining like fresh, please ensure that your mic is mute and switch on only when you're trying to interact with me. So let's begin our session. Let me share the slides with you first. So I have started to share my screen. Just confirm when you are able to see the slides. Students, please tell me whether you are able to see the slides. We can see. Yes, sir. All right. Okay then. So we will directly resume from where we had done till yesterday. Okay. So last day we had come to know that relational model is is given high priority among all the data models available there. The relational model is the most widely used, around 50% overall usage. Like that's what is done with the help of relational model. All the data models which are used, 50% of them they are relational models. Okay. Now we had seen an example of a relation. We had discussed about schema, instance. We had talked about the attributes also and what is meant by domain. Right. There was one thing which we had not discussed last day, and let me just start the pen. Okay. So last day we had not discussed about this term atomic. Okay. So atomic basically means that they are simply indivisible. Like whatever we are entering in the relation. Okay. I'm drawing it out. So whatever is there in every cell, whatever we enter. Suppose here we are mentioning ID. So we are inserting ID here. So whatever is the ID, say suppose it is like 1, 2, 3, 4, 5, then this acts as one unit. It is indivisible at this moment. Okay. So that's why it has been referred to as that the values of the attribute, they are atomic. Okay. We had seen a similar term, atomicity. Okay, somebody has joined right now and his mic is on. Everybody, whenever you are joining, ensure that your mic is not on. By default, whenever you join to MS Teams, the microphone is on. I believe the mic is still on. See, this is something which you should take responsibility of. Whenever you are joining, you should switch off the mic on your own. All right. So let's continue. So I was saying that we had learned about a term which is very similar to this word, atomic. And this term we had discussed in connection with transaction, if you remember. किसी को याद है what example we had discussed about transaction? We had discussed it day before yesterday, but we had talked about it a bit, like a little bit yesterday also. किसी को याद है वो transaction वाला example from your account to your friend's account, जिसमें 500 we were going to transfer. Yes, sir. हाँ, तो उसमें हम ये सीखे थे ना कि या तो वो सारे के सारे set of actions या तो completely हो जाए और या फिर बिल्कुल ना हो, है ना? तो वहाँ पे we were considering those set of actions as one. ठीक है? As one. मतलब indivisible एक तरह से. That's why we said कि हाँ ये वाला property है, इसको बोलते हैं atomicity, by the virtue of which whatever the actions are there in a transaction, either it happens, like all of them happen or none of them happen. तो basically इस चीज को implement कैसे करते हैं कि अगर बीच में failure हो गया process के बीच में, तो whatever changes were made so far, वो सारे के सारे को हम लोग वापस ले लेते हैं. All the changes
they are reverted back. यही था बस. Then there is another point which says कि हर एक डोमेन में, जैसे कि we had discussed कि एक एक एट्रीब्यूट है, तो एक एट्रीब्यूट में जितने भी सेट ऑफ वैल्यूज परमिटेड हैं उसको उसका डोमेन कहते हैं. तो बाय डिफॉल्ट नल रहता है वहां पे, मतलब अगर कुछ नहीं है तो वहां पे क्या है, नल है. ठीक है, नल मीन्स जीरो, नथिंग. तो अगर कुछ भी नहीं है तो नल है. तो इसीलिए हम लोग एक बार ये भी देखे थे कि जब हम लोग टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे जैसे हम लोग लिख रहे हैं क्रिएट टेबल, सबको रिकॉल कीजिए क्या हम लोग कल सीखे थे. क्रिएट टेबल, उसके बाद फिर क्या लिखते थे यहाँ पे, टेबल नेम मेंशन करते थे यहाँ पे, टेबल नेम, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन किए और फिर हम लोग पहला एट्रीब्यूट लिखे, फिर स्पेस दिए, फिर पहला उसका डोमेन लिखे, उस एट्रीब्यूट का डोमेन लिखे. उसके बाद में वी कैन अप्लाई अ नॉट नल कंस्ट्रेंट. इसके लगाने से ये होता है, ये कंस्ट्रेंट लगा देते हैं हम लोग कि ये जो एट्रीब्यूट है इसमें कभी भी नल नहीं हो सकता. मतलब जब भी वैल्यूज इंसर्ट होगा इस टेबल में तो इस वाले एट्रीब्यूट में तो इंसर्ट होना ही होना चाहिए. Did you understand this? Class? यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. All right. Now let's get here. So here we are learning that relations are unordered. अब इसका मतलब practical example समझते हैं. Suppose you have created one table. What was the table that we had created yesterday? कौन सा हम लोग बनाए थे कल? कल हम लोग कोई टेबल बनाए थे, याद है? Yes, sir. Name and salary number. हाँ. Name, salary number, and name. हाँ. ID, name, department name, and salary. As far as I can remember, these were the attributes. लेकिन ये किस टेबल के थे, कौन से रिलेशन के थे? उस रिलेशन का नाम था इंस्ट्रक्टर. इंस्ट्रक्टर, राइट, which means faculty. ठीक ना? तो now when we are trying to insert data in this relation, मतलब हम लोग पहले ये तो बना लिए and now we are trying to insert data in this. तो suppose हम लोग इस एग्जांपल को लेते हैं यहाँ पे. suppose हम लोग पहले ये insert किए, ठीक है, हम लोग डाले कि मतलब ये सारे वैल्यूज जो हैं इस इन एट्रीब्यूट्स में, इस रिलेशन में वो इंसर्ट हो गए. ठीक है, we did that. After that we inserted this, after that we inserted this, we inserted all of these. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं होगा हर बार कि whatever order in which you have inserted the data in the relation, जब भी आप उसको व्यू करना चाहें तो वो exactly उसी ऑर्डर में आपको दिखाई दे. In the practical sessions a lot of students ask कि सर ये तो इस ऑर्डर में नहीं था जिस ऑर्डर में I had entered. So why does this happen? This happens because of the fact that in DBMS, in database, the relations are unordered. Unordered मतलब ऑर्डर में नहीं रहते हैं. ठीक है, and it makes sense. मतलब हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर हम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर हम लोग को इसको अरेंज करना है ऑर्डर में, सपोज असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो उसके लिए हम लोग के पास है यहाँ ऑपरेशंस, उसको यूज करके हम लोग इसको मैनुअली कर सकते हैं. ठीक है, द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज कि डेटा रहे और जब जिस डेटा की हम लोग को जरूरत हो, व्हेन वी आर ट्राइंग टू रिट्रीव दैट, तो वो हम लोग को वैसे मिल पाए. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन फोकस इज नॉट ऑन द ऑर्डर ऑफ द डेटा. ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई? So if anybody asks you कि क्या जैसे हम लोग एक्सेल में एंटर करते हैं तो एक्सेल में वो जिस तरह से एंटर करते हैं उस तरह से दिखाई भी देता है. The order in which we are entering उसी में दिखाई देता है. But in DBMS, in the database, it is not important that you will be able to see the data, the tuples in the very same order in which you are inserting.
Please tell me whether you have understood this concept. Excuse me, sir. हाँ पूछिए. Excuse me, बोलिए. sir. हाँ बोलिए ना. Sir, actually, I'm late. So, can you please explain it once more? Okay, sure. See, today I'm trying to like make you understand कि जब हम लोग कोई टेबल क्रिएट करते हैं, so after that we try to insert data in that. इसको बोलते हैं to populate. Sorry, I have to use the eraser. In fact, I'll just write it once more. Populate, ठीक है? We after creating the relation or the table, we populate it. तो populate का मतलब सीधे बस कि insert data in the relation. This is what populating a relation means. ठीक है? So when we are inserting the data, तो suppose अगर हम लोग ये वाला tuple पहले insert किए, ये वाला tuple, I'm talking about this tuple, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वाले टपल को इंसर्ट किए एंड सिमिलरली जिस ऑर्डर में ये दिख रहा है ना, तो उसी ऑर्डर में हम लोग टपल्स को इंसर्ट करते चले. नाउ व्हेन वी आर ट्राइंग टू व्यू दिस डेटा, व्यू दिस रिलेशन बाय यूजिंग द एसक्यूएल कमांड select, we call this all also, okay, and logically this is like just an asterisk, ठीक है. Sometimes it's also referred to as star, ठीक है. मतलब normally we call it asterisk in general life, okay. In this case, since it refers to like all, okay, so that's why we call it select all. You can say select star, select all, select asterisk, it's up to you. Select asterisk from and then the name of the table, ठीक है, the name of the table. In fact, why not try this out? ठीक है, हम लोग इसको try करते हैं. But wait, before trying it out, we also need to populate the table. We had only created the table last day, right? We had not populated it. Okay. So let's do one thing. कल जो हम लोग टेबल बनाए थे, उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि वो अभी है या नहीं. If it is there, then we will work on it. ठीक है. और we will try to insert data in that, and then we will try to see that data. ठीक है? Let's do this. So I'll just switch off the camera for a while so that we can like go there. Just a minute. The screen is still visible, right? Yes, sir. You see that just like yesterday, we have opened that website, okay, and after that, we have like reached to the dashboard. यहाँ तक सबको याद है? Yes, sir. Okay. तो बताइए फिर next हम लोग क्या कर रहे थे? After this, what we were doing? SQL. SQL में command लिखी थी. बोलिए. SQL पे क्लिक कर रहे थे, right? Yes, sir. Okay. Yes. Right. Okay. Now we will click on SQL commands. The window gets bigger. Now let's first see yesterday's table. ठीक है? So describe क्या था नाम of the table? Instructor. अच्छा, do you remember I had told something about case yesterday? Case के बारे में कुछ बोले थे? Capital, small रखने के बारे में. I had told. Yes, sir. It is not case sensitive. It is not. Excuse me, case sir. sensitive. Excuse me, sir. Yes. There is someone who is removing me again and again. Acha, okay. What is your name? Raj Ballab.
Raj Vallabh. Acha. Okay, I'll just check with like who can do that. Let me just check. Let me just give me a moment. Okay, students, please don't do that to like one another. Don't remove other students. And in the meantime, I have informed my colleagues. They will be taking care of that. In this like moment, let's focus on learning. Okay. So once again, so we were talking about this describe instructor. So now when I'm clicking on run, see, यहाँ पे हम लोग we can view that table which we had created yesterday. ठीक है ना? यहाँ तक तो सबको याद होगा, right? Yes, sir. अब हम लोग को इसमें values insert करना है, ठीक है? टेबल क्रिएशन में किसी को दिक्कत है? Anybody है? टेबल क्रिएट कैसे करते हैं ये? नो सर, नहीं पता. अच्छा, ठीक है. और किसी कोई डाउट? हाँ बोलिए. सर ये वर्चुअल वाला समझ में नहीं आया था. कौन सा वाला नहीं समझ में आया था? वैरकैर वाला. यस सर. वैरकैर वाला ना? यस सर. हाँ ठीक है, ठीक है. तो वैरकैर मतलब कि आपका वेरिएबल कैरेक्टर. ये जो नहीं डेटा सर, टाइप इसके बाद जो 20 और 30 लिखे थे वो नहीं समझ में आया. वो लेंथ होता है, वो साइज होता है कि जैसे अगर हम लोग नेम एंटर करेंगे ना, तो जैसे नेम के लिए कितना लेंथ हम लोग रखे हुए हैं, देखिए 20. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मैक्सिमम 20 अल्फाबेट्स हम लोग टाइप कर पाएंगे, लेंथ हम लोग 20 रख पाएंगे. ठीक है. वैरकैर में फायदा ये है कि वो 20 के 20 यूज अप नहीं रहता मेमोरी से, अगर हम लोग उससे कम का वैल्यू एंटर कर रहे हैं. तो अगर हम लोग सिर्फ कैर यूज करते तो वहां पे वो फिक्स्ड लेंथ रहता है. तो मतलब कि जितना हम लोग सेट कर दिए ना 20, तो वो हर एक एंट्री के लिए 20 लेंथ का स्पेस वो ईट अप हो ही जाता है मेमोरी से. लेकिन वैरकैर में यही बेनिफिट है कि यहाँ पे वेरिएबल लेंथ है. हम लोग जो असाइन कर रहे हैं, अगर उससे हम लोग छोटा वैल्यू डाल रहे हैं तो वो उतना ही यूज करेगा मेमोरी से. तो ये बेटर हुआ ना कैर से. यस सर. ठीक, ठीक है. तो टेबल क्रिएशन में हर्ड की मतलब कुछ लोग को टेबल क्रिएशन फिर से करना है, राइट? तो ऐसा करते हैं कि वी विल क्रिएट अ फ्रेश टेबल. ठीक है. तो एवरीबॉडी फोकस है. हम लोग पहले लिख रहे हैं क्रिएट टेबल. ये तो सबको याद होगा. एंड आई हैड आल्सो एडवाइस कि जो एसक्यूएल कमांड्स होंगे ना, उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे तो वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल होगा. ठीक है ना? सो इट इज अ गुड लाइक रिकमेंडेशन कि हम लोग सारे के सारे एसक्यूएल कमांड्स को कैपिटल में लिखें. ठीक है. तो बाकी चीजों को स्मॉल में लिखें. ऑल्दो इट इज नॉट केस सेंसिटिव, आई हैव बीन रिपीटिंग दिस. ठीक है. तो अब हम लोग एक काम करते हैं, स्टाफ के नाम से बनाते हैं. तो स्टाफ अंडरस्कोर, स्टाफ के नाम से हो सकता है पहले भी कोई बनाए होंगे, तो वी विल अटैच सम नंबर विद दिस. ठीक है. तो नंबर रख लेते हैं सपोज जैसे कि 111. ठीक है. हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स रखते हैं. तो एट्रीब्यूट्स क्या, जैसे एट्रीब्यूट रखते हैं एम्प्लॉई आईडी. ठीक है. एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई आईडी. तो ठीक है. अब बताइए इसका हम लोग को डोमेन क्या रखना चाहिए? सर इंटीजर. ठीक है. इंटीजर. ओके. नंबरिंग. ठीक है. तो क्या टाइप करें यहाँ पे हम डोमेन टाइप के लिए? क्या टाइप करें? एवरीबॉडी हु वाज देयर यस्टरडे. क्या नहीं याद आ रहा आपको? क्रिएट टेबल. सर नंबरिंग. नहीं, यहाँ पे न्यूमेरिक हम लोग नहीं देते हैं. न्यूमेरिक तो हम लोग दे रहे हैं वहां पे जहाँ पे हम लोग को डेसिमल की जरूरत पड़ती है. सर जैसे सैलरी वगैरह, राइट? उस वाले केस में, है ना? ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है.
तो एम आईडी हो गया, इंटीजर हो गया, उसके बाद फिर हम लोग एक नेम रखते हैं। नेम का हम लोग क्या रखें, वेरिएबल कैरेक्टर रखते हैं, है ना। और कितना रखें उसका हम लोग, वैर क्या रखते हैं, सपोज 50 रख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा ही रख लिए इस बार हम लोग। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट रखते हैं, एक और एट्रीब्यूट बनाते हैं सिटी नाम का, ठीक है, कि वो किस सिटी में वर्क करता है। इसको भी हम लोग वैर क्या रखते हैं। इसका लेंथ हम लोग नेम से थोड़ा कम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे, सैलरी, ठीक है। अब सैलरी को यहाँ पे हम लोग आज इंट ही रहने देते हैं, ठीक है, हम लोग डेसिमल वाला नहीं यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट का आईडी, तो जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उसका आईडी, ठीक कर दिए। अब हम लोग इसे क्लोज किए, एक बस ये ऑप्शनल सेमीकोलन लगा दिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लोग इसको लगा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग इसको करेंगे रन। रिजल्ट क्या आया, व्हाट वाज द रिजल्ट दैट वी सॉ क्लास, व्हाट इज द रिजल्ट। Table, sir. Naming staff. अच्छा, शेयरिंग हैज स्टॉप्ड, अच्छा ठीक है, आई विल स्टॉप द शेयरिंग स्लो चल रहा है एंड आई विल डू इट अगेन। आगे रहा है और स्क्रीन में पीछे दिख रहा है। Somebody's mic is again on. Let me just stop the sharing and redo it. Okay. So I've stopped the sharing and I'm sharing again once more. Okay. Are you able to see now? Because I've shared again. Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग ये विंडो उतने देर से नहीं दिख पा रहे थे क्या? You were not able to see me typing? Sir, it was a bit laggy. Acha, it was good. Acha. So now tell me, I have typed these SQL commands, okay, and I have pressed on run. तो अब इसका रिजल्ट क्या आया? What was the action that happened? Notice कीजिए यहाँ पे. The table was हाँ, you can see here table created का मैसेज आ गया in the result section. 0.03 seconds में ये बना दिया table created, ये कह रहा है, ठीक है? तो टेबल का क्रिएशन हो गया, राइट। नाउ इफ वी वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेबल, हाउ वी विल बी एबल टू सी द स्ट्रक्चर, बताइए। कल हम लोग दो कमांड किए थे, डिस्क्राइब I believe there was a network disruption, right? You were not. Students, are you able to hear me now? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. okay. The network must have been disrupted. Anyway, we will just continue with our learning part. So I have written here the command describe and then I have mentioned the table name, right? Now I'll just run this, ठीक है? I'll just run this. Now, are you able to see the structure of the table? आप देख पा रहे हैं? Yes, sir. है ना? तो अभी आप देख पा रहे हैं कि
वी हैव ऑल द एट्रीब्यूट्स, वी हैव द नेम ऑफ द रिलेशन, और यहाँ पे लेंथ भी मेंशन्ड है varchar वाले केस में, और यहाँ पे attributes in them they can have null, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी टपल में इनमें कोई वैल्यू ना हो, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऐसा आपको लग रहा है एट्रीब्यूट which should never be null, उसमें हमेशा एंट्री होना ही चाहिए whenever any tuple is inserted, उस वाले एट्रीब्यूट में तो डेफिनेटली वैल्यू होना चाहिए। कोई है ऐसा एट्रीब्यूट? Employee ID, sir. Employee ID. Employee ID. Right. Employee ID, हाँ, तो इसको हम लोग ऐसा बनाते हैं कि ये नलेबल ना रहे, ठीक है। लेट्स ट्राई इट आउट। तो हम लोग यहाँ एम्प आईडी के बगल में गए और यहाँ इसके केवल में स्पेस लगाए ऐसे और लिखते हैं इसको बनाते हैं, तो एक और वन बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, अब इसको जो है हम लोग रन करते हैं, ठीक। जस्ट नोटिस व्हाट हैपेंस नाउ। टेबल क्रिएट हो गया, लिखा आ गया ना रिजल्ट्स में, टेबल क्रिएटेड, राइट? यस सर। ठीक है, अब ये डिस्क्राइब वाला ऑप्शन यूज करते हैं इसके साथ, ठीक है। लेट्स चेक दिस आउट। अब बताइए कुछ चेंज दिखाई दे रहा है? यस दोनों में कोई चेंज? यस सर। नलेबल वाला जो है एम्प आईडी का, अब उस पर टिक नहीं है, इसका मतलब अब ये नलेबल नहीं है। We have applied the not null constraint, मतलब जब भी वैल्यू एंटर होगा तो एम्प आईडी में तो वैल्यू जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए हम लोग ट्राई Yes, करते हैं इस टेबल को पॉपुलेट करने का। पॉपुलेट करने का मतलब याद है सबको? I just thought some minutes ago. Insert Populate, Yes, sir. Insert data. Insert the value. इंसर्ट करना वैल्यूज को टेबल में यानी रिलेशन में इंसर्ट करना मींस टू पॉपुलेट द डेटा इन द रिलेशन, ठीक है ना। सो लेट्स डू दैट। अच्छा, अगर आप लोग को मेरे फर्स्ट सेशन से ध्यान होगा तो डेटा को मतलब वैल्यूज को हम लोग टेबल में डालने के लिए कुछ कमांड यूज करते हैं। तो किसी को ध्यान में है वो टेबल, मतलब वो पर्टिकुलर कमांड किसको याद है अभी? Insert into. वेरी गुड, वेरी गुड। इंसर्ट वाला कमांड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग भी करते हैं। तो हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू। उसके बाद हम लोग लिखेंगे टेबल का नाम। यहाँ पे टेबल का नाम क्या है? स्टाफ, ठीक है, अंडरस्कोर 111, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्ट इनटू टेबल, राइट। अब हम लोग इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। हम लोग आते हैं फ्रेश लाइन में, लिखते हैं वैल्यूज, ठीक है। और अब जो है जो भी वैल्यूज है ना उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, उस ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में वो एट्रीब्यूट्स हम लोग बनाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो यहाँ आपको दिख रहा है ना एम्प आईडी, ये वो एम्प आईडी, नेम, सिटी, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी, इसके अकॉर्डिंगली आप लोग कुछ वैल्यूज बताइए। हम लोग कुछ सही कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले के लिए ये जो एम्प आईडी है इसके लिए हम लोग सपोज रख लेते हैं somebody's mic is again on, please आप लोग ध्यान रखिए इस बात का। when you are joining here तो by default mic on रहता है, so please after joining आप लोग उसको ऑफ कर दीजिए। तो वैल्यूज के लिए जो है हम लोग पहले डालते हैं 50011, ठीक है। लेट्स डू दैट। वैल्यूज में 50011, उसके बाद हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब नेक्स्ट में क्या है? नेम है। तो नेम में सपोज हम लोग अभी नेम को जो है वो ये आपका स्ट्रिंग है, तो उसको हम लोग ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो नेम जैसे हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे मोहन, ठीक है, दैट्स राइट, मोहन। उसके बाद फिर से कॉमा से सेपरेट किया। अब नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है? सिटी। सिटी भी अगेन स्ट्रिंग में आएगा, वैल्कर लिखे हुए हैं, तो ठीक है, एंटर करते हैं। सपोज यहाँ लिखते हैं हम लोग रांची। आफ्टर दैट फिर से हम लोग कॉमा यहाँ पे दिए एक। अब क्या बचा? सैलरी। और सैलरी के लिए हम लोग इंट रखे हुए थे, तो ठीक है, सपोज वी आर राइटिंग हियर से यहाँ हम लोग देते हैं 70,000 देते हैं, ठीक है, 70,000, ओके। उसके बाद फिर
अब क्या बचा, डिपार्टमेंट आईडी। सपोज डिपार्टमेंट आईडी इनका जो है ये है 1001, ये इनका डिपार्टमेंट आईडी। अब इसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं, देन वी आर प्लेसिंग द ऑप्शनल सेमीकोलन। सेमीकोलन के बारे में सबको याद है ना, क्या बात किए थे हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. सेमीकोलन ऑप्शनल है, वी आर जस्ट डूइंग इट सो दैट वी स्टे इन प्रैक्टिस। अगर यहाँ पे हम लोग चाहें तो सेमीकोलन हटा के भी कर सकते हैं, काम हो सकता है। लेकिन जब आपके पास एक से ज्यादा आपको एसक्यूएल कमांड्स मिल जाएंगे, क्वेरीज मिल जाएंगे, तो टू मेक अ सेपरेशन यू नीड टू प्लेस सेमीकोलन। ठीक है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस को बनाए रखने के लिए। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं। लेट्स डू दिस। क्या आया रिजल्ट में? रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है? One rows inserted. One row वन रो इंसर्टेड, ठीक है ना। Yes, अब sir. हम लोग जो है इसको देखते हैं, अब इस टेबल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस टेबल को अगर हम लोग फिर से यही चीज यूज करें, ये जो डिस्क्राइब वाला है, अगर हम लोग फिर से इसी को रन करें, देखिए रन करते हैं तो क्या आया? फिर से वी आर जस्ट एबल टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। क्या इसमें वैल्यूज दिखाई पड़ रहा है? इज एनीबॉडी एबल टू सी द वैल्यूज? No, sir. No, sir. No, sir. नो। तो जब भी हम लोग टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है, वैल्यूज रहे या ना रहे, उसका स्कीमा समझना है, तो हम लोग डिस्क्राइब यूज कर लेंगे, है ना। एंड व्हेनेवर वी हैव टू सी कि कंटेंट्स क्या है उसमें, सो इन दैट केस वी विल हैव टू यूज द कमांड सेलेक्ट। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल, मतलब एस्टेरिस्क मतलब ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम और टेबल का नाम जो कि है यहाँ पे स्टाफ अंडरस्कोर 1111 और एक ये ऑप्शनल सेमीकोलन दे दिए। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, रिजल्ट में क्या आया? डिटेल आ गया। डेटा एंटर वन रो इंसर्ट हो गया सर। हाँ, नहीं इंसर्ट तो पहले हो चुका था। जब हम लोग इंसर्ट इनटू वाला किए थे तब वो इंसर्ट हो चुका था। अब हम लोग देख पा रहे हैं उस चीज को। वी आर एबल टू सी द एंटायर टेबल विथ ऑल Table द with इंस्टेंट। content. या इंस्टेंस है, इसको क्या बुलाएंगे? स्कीमा बुलाएंगे या इंस्टेंस बुलाएंगे? अब इंस्टेंस सर। इंस्टेंस, वेरी गुड, Instance. वेरी गुड क्लास। ठीक है, फिर अब हम लोग वापस चलते हैं अपने डिस्कशन पे। ठीक है, हम लोग दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलेंगे। हेलो सर। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? सर जो हाँ जितना जो अल्फाबेट लिखा हुआ है जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। हाँ, जिस Like ऑर्डर में इंसर्ट है, कैपिटल हाँ, लेटर में वैल्यू है। जिस ऑर्डर में आप जो है एट्रीब्यूट्स को सेट किए थे ना, आप उसी ऑर्डर में वैल्यूज को भी प्लेस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक, ओके देन नाउ लेट्स गो टू द डिस्कशन पार्ट। हम लोग वहां चलते हैं। ओके, तो यहां तक समझ में आया कि रिलेशंस आर अनऑर्डर्ड। ठीक है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस स्कीमा इंस्टेंस ये हो गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड कीज। ठीक है, जस्ट मोमेंट। हाँ, लेट मी स्टार्ट द पेन अगेन। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग कह रहा है कि लेट के बी अ सबसेट ऑफ आर। सबसेट समझते हैं सब कोई? इज एवरीबॉडी है लाइक? Yes, sir. मतलब के सारे एलिमेंट्स आर में आर में होंगे। हैं, राइट। लेकिन के आर के बराबर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट तब होता है, सपोज के है, ठीक है, के में सपोज देखिए के में जैसे कि ये 1 2 3 और 4 है, ठीक है, और आर में सपोज 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है।
तो k का सारा एलिमेंट r में है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. लेकिन k r के बराबर नहीं हो गया क्योंकि r फिर भी k से अभी बड़ा है। सबसेट मतलब कि सेट से छोटा, जो सेट का हिस्सा हो। तो k जो है r का हिस्सा यहाँ दिख रहा है, लेकिन k r के बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि k इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ r। उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, k इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ r, which means कि all the elements of k are also in r, also in set r, but k in no case is equal to r. Understood? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. वहीं सबसेट में ऐसा हो सकता है कि अगर इसमें सिर्फ 1 2 3 4 हो तो भी कह सकते हैं कि हाँ k r का सबसेट है, जहां पे k r के बराबर भी हो सकता है किसी किसी केस में। मतलब कि ये 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 है, k इक्वल्स टू r है, फिर भी कह सकते हैं कि k r का सबसेट है। अब यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 है तो भी कह सकते हैं कि हाँ k r का सबसेट है। अगर यहाँ पे और ज्यादा भी हो गया तो भी कह सकते हैं कि k r का सबसेट है। तो मतलब प्रॉपर सबसेट अगर किसी का बन रहा है हम लोग, तो उस मेन वाले से हम लोग को थोड़ा कम रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जस्ट सबसेट हैं तो हम लोगों के जितने एलिमेंट्स हैं वो तो दूसरे वाले में हो ही सकते हैं जिसके हम लोग सबसेट है, प्लस किसी के केस में हम लोग इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है टू लर्न अबाउट दीज टर्म्स। सबसे पहले है सुपर की, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर सपोज्ड टू लर्न इज कि किस एट्रीब्यूट को हम लोग सुपर की बोलेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ऑल द कीज दे आर एक्चुअली एट्रीब्यूट्स। किसी किसी एट्रीब्यूट को हम कोई की बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब सारे के सारे की कोई ना कोई एट्रीब्यूट ही है। ये वाला एस्पेक्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग इस एग्जांपल में चलते हैं जरा, इंस्ट्रक्टर वाले एग्जांपल में। ये दिख रहा है सबको ये टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख के बताइए कि ऐसे कौन से एट्रीब्यूट हैं जिनके वैल्यूज एकदम अलग अलग हैं, यूनिक हैं, और उनके ही हेल्प से हम लोग हर एक पहचान सकते हैं। यहाँ पे इस बात पे फोकस कीजिए। हाँ, ID sir, ID. आंसर इज करेक्ट, लेकिन ये वाली बात समझना बहुत जरूरी है फॉर दोज हु लाइक आर न्यू टू दिस सब्जेक्ट, कि हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई ऑल द टपल्स डिस्टिंक्टिवली, ठीक है। कि मतलब जैसे ये टपल है, ये टपल है, हर एक टपल है। तो जैसे हमको अगर समझना है कि हम लोग को इंडिकेट करना है इस टपल को, तो हाँ ऐसा एक एट्रीब्यूट हम लोग इसमें से चूज कर लेंगे जिसका वैल्यू उस एट्रीब्यूट में एकदम यूनिक है। तो जब भी उसको रेफर करना होगा तो हम लोग बस उस आईडी, उस एट्रीब्यूट के वैल्यू को रेफर करेंगे और उसी से पहचान लेंगे उस पूरे एंटायर टपल को। जैसे यहाँ पे 151, बस यहाँ पे ऐसे ये मार्क कर देने से हम लोग इस पूरे टपल को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का आंसर था कि हाँ सर हम लोग आईडी को यूज कर सकते हैं। आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसका हर एक वैल्यू डिस्टिंक्ट है और उसकी वजह से हम लोग हर एक टपल को, उसके करस्पॉन्डिंग टपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। क्या यहाँ पे इस केस में ये काम सिर्फ आईडी कर सकता है? प्लीज चेक इट आउट। आई विल रिमूव द इंक। In this given relation, is only ID capable enough to become? Sir, the name would also do. So name also Yes, can sir. be used. Name में भी सारे values distinct हैं, पहचानना बहुत easy है। We just have to look at the values stored in that attribute. If all the attributes are unique, ठीक है, then it means we can use that attribute. क्या department, अच्छा आप you have just said कि name भी सर हम लोग use कर सकते हैं। Now just go to the other attribute, department name. Can we use that? वो देखिए जरा। Are all the values No, sir. stored in No, sir. department name are they unique? So No. computer sir. No, science sir. is 3 times, sir.
some values do repeat. It has been mentioned Yes, twice. sir. History also two तो times. ये यूज नहीं कर सकते हैं. अगर कंप्यूटर साइंस बोले तो कंप्यूटर साइंस अगर रेफर करें तो फिर तो ये वाला टपल भी और ये वाला टपल भी और ये वाला टपल भी पॉइंट आउट हो जाता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है. तो मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है सारा टपल्स. सैलरी वाले केस में जरा चेक कीजिए. टिल दैट मोमेंट आई विल जस्ट रिमूव द इंक. जस्ट चेक द सैलरी एट्रीब्यूट. No, sir. Some values are repeating. 80,000 is repeating. 80,000 यहाँ भी है, राइट. 80,000 यहाँ भी है. तो इसका मतलब 80,000 को हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि उससे दो टपल्स आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं. तो कहने का मतलब क्या क्या बचा? एक आईडी बचा, राइट. एक फिर अच्छा नेम में देखिए सब कोई यूनिक है ना. कंफर्म देख लीजिए एक बार वंस मोर. नेम में सारे वैल्यूज यूनिक हैं या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Unique. Yes, sir. आईडी और नेम, राइट, ये दोनों हैं इस काबिल कि वी कैन यूज देम टू आइडेंटिफाई द टपल्स डिस्टिंक्टिवली. अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इस एस्पेक्ट पे. ये क्या बतलाता है? ये कह रहा है यहाँ पे कि K इज अ सुपर की ऑफ R. यहाँ पे R मतलब क्या हुआ? रिलेशन, ठीक है ना. और K क्या है? K यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है. तो ये वाला तो बन सकता है ना टेबल में जो भी एट्रीब्यूट है वो उसके सबसेट हो सकते हैं. आईडी क्या है? इस पूरे रिलेशन का सबसेट है ना. देखिए यहाँ पे इसमें देखिए आईडी एक हिस्सा है ना. तो आईडी को बोल सकते हैं ना अ सबसेट ऑफ इंस्ट्रक्टर. सही बात है या नहीं? यस सर. ठीक है ना. और चाहे तो आईडी कॉमन नेम को भी कह सकते हैं ऐसे एक साथ, या सारे को भी कह सकते हैं एक साथ. फिर भी हम लोग सही रहेंगे, ठीक है ना. फिर भी हम लोग सही रहेंगे. सबसेट वाला एग्जांपल हम जस्ट सीखे ही थे कि सबसेट में पूरे के पूरे वैल्यूज कवर हो सकते हैं. यानी कि अगर एक साथ ये सारे के सारे अगर भी बोले ना तो भी इन सबको बोल सकते हैं कि दे आर अ सबसेट ऑफ दिस रिलेशन इंस्ट्रक्टर. बोल सकते हैं ना. अभी हम लोग सबसेट और प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन देखें ना, डिफरेंस उसमें. Yes, sir. ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे K को R का सुपर की बोल सकते हैं अगर K का वैल्यूज सफिशिएंट है टू आइडेंटिफाई अ यूनिक टपल ऑफ एवरी पॉसिबल रिलेशन. ठीक है. तो कहने का मतलब सिंपल ये कि वो एट्रीब्यूट्स या वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिनके हेल्प से हम लोग उस रिलेशन के हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो वो अभी हम लोग सीखे. वो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आप लोग पता है आईडी, राइट. दूसरा बोले नेम, ठीक है ना. आईडी पहला हो गया, नेम दूसरा हो गया. इन दोनों को मिला के भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है. जब ये लोग अकेले अकेले काफी थे टू हैंडल द एंटायर रिलेशन, टू आइडेंटिफाई ऑल द टपल्स यूनिकली ऑफ द रिलेशन, तो दोनों को साथ साथ मिला दिया जाए, देन आल्सो दे विल बी एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द टपल्स ऑफ द रिलेशन. सही बात है या नहीं? यस सर. ठीक है ना. तो हम लोग के पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस हो गए. Although here we see that only two have been mentioned as example, लेकिन ये तो बस एक एग्जांपल है ना. there can be more. तो यहाँ पे हम लोग पास कितने सुपर कीज हैं? If we just try to think of super keys, how many super keys we have for this instructor relation? Two. कितने? टू बोले क्या? थ्री है ना. यहाँ पे थ्री पॉसिबिलिटी है ना. एक तो है कि जितने भी खुद में काबिल हैं टू शो द टपल्स, टू आइडेंटिफाई द टपल्स यूनिकली, उनको पहले हम लोग लिस्ट कर रहे हैं और फिर उनका कॉम्बिनेशन भी बना दिए, है ना. ठीक. तो सुपर की सबको समझ में आया या नहीं आया? ये बताइए. सुपर की में किसको डाउट है कि व्हाट इज द सुपर की? एनीबॉडी? Sir, repeat once again. ठीक है, लेट्स डू इट वंस मोर. Once again. सुपर की मतलब वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या वो एट्रीब्यूट जिनके हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई एवरी टपल यूनिकली. हर एक टपल को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें. इस बात का मतलब समझ रहे हैं ना कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके हर एक टपल को. इस बात को समझने में कोई डाउट नहीं है.
No, sir. इस बात को समझने में कोई डाउट नहीं है ना कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हर एक टपल को, No, sir. या इसमें भी डाउट है? No, sir. ठीक है, तो ये वाला एस्पेक्ट क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिनके हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली। तो आईडी पे आते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 2 2 2 2 मतलब 5 टाइम्स 2 है यहाँ पे। ये वैल्यू अगर इसी के भरोसे हम लोग ढूंढना शुरू करें तो एक ही टपल है जिसका आईडी 2 2 2 2 2 है। बाकी और किसी भी मतलब टपल में आप नोटिस करेंगे ये वैल्यू रिपीटेड नहीं है, ये एक ही बार आ रहा है। तो जब भी हम लोग रेफर करेंगे इसको या यूज करेंगे इसको टू फाइंड आउट द टपल, हमेशा यही वाला टपल मिलेगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, राइट? ये वाला एस्पेक्ट समझ आ रहा है ना? तो इसका Yes, मतलब कि इट कैन एक्ट एज अ सुपर की फिलहाल के लिए। ये स्टार्टिंग फ्रॉम टिप, ठीक है ना? हम लोग सुपर की से स्टार्ट करेंगे और तब हम लोग प्राइमरी की तक पहुंचेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर ब्यूटीफुली, ठीक है? तो अभी के लिए फिलहाल ये है कि वी आर लुकिंग एट दोज एट्रीब्यूट्स whose values are unique in the sense that we can identify every tuple uniquely with the help of them, right? So that we can do with the help of id की हेल्प से हो पा रहा है, नेम की हेल्प से भी हो पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग आईडी को भी माने और नेम को भी माने। और जब आईडी और नेम अलग अलग दे आर सफिशिएंट टू गेट द टपल्स आइडेंटिफाइड, तो इसका मतलब उनका कॉम्बिनेशन भी कैपेबल होगा, राइट? If one person is powerful and other person is also powerful, if you make a team of both of them, तो भी तो एक पावरफुल टीम ही रहा ना, राइट? Yes, sir. Yes, sir. That we can use as the super key। यही कह रहे थे कि ये इंस्ट्रक्टर रिलेशन का ये 3 सुपर कीज हैं, और रीजन हम लोग अभी जस्ट समझे। अब डाउट है किसी को इसमें? No, sir. ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं टू द नेक्स्ट की। पहले हम लोग सुपर की समझ गए, अब हम लोग आते हैं उसके नीचे कैंडिडेट की, ठीक है? तो कैंडिडेट की को पहचानने का रूल बहुत सिंपल है। सुपर की को हम लोग स्मॉल बनाते हैं, ठीक है? और जो उसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सीके। मतलब अगर आपको एसके एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स उसमें हैं उसमें, तो आप उसको ब्रेक कीजिए इन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स या इंडिविजुअल सेट्स ऑफ सबसेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। और अगर वो सब भी काफी हैं टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उनको हम लोग कैंडिडेट की बोल सकते हैं। लेट्स चेक दिस आउट। इस एग्जांपल में आता है, आई विल इरेज ऑल द इंक हियर। अच्छा नहीं, आई विल लेट द इंक बी। अभी यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे हम लोगों के पास सुपर कीज के सेट में यहाँ 3 मिले, आईडी भी मिला, नेम भी मिला, आईडी कॉमन नेम भी मिला। अब यहाँ पे देखना है हम लोगों को कि इनमें से मिनिमल कौन कौन सा है, क्योंकि जो सुपर की मिनिमल होगा, मिनिमल वो कहलाएगा कैंडिडेट की, राइट? तो आईडी तो खुद एक ही है, क्या इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? ये तो खुद एक एट्रीब्यूट है ना, कैन बी डिवाइडेड फर्दर? नहीं ना, राइट? नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी मिनिमल है, ये ऑलरेडी मिनिमल है, राइट? इससे छोटा नहीं कर सकते, क्या सकता? अच्छा, नेम क्या डिवाइड कर सकते हैं? यहाँ पे नेम तो ऑलरेडी मिनिमल है, ये भी एक ही एट्रीब्यूट है, एक ही एट्रीब्यूट है तो वो मिनिमल है, राइट? अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, आईडी कॉमन नेम। क्या हम लोग इसको डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं इसमें? कैन वी मिनिमाइज दिस? छोटा कर सकते हैं इसको, और कर सकते हैं आईडी में और किसमें? नेम में, है ना? आईडी में और नेम में। अब ये चेक करना है कि क्या ये दोनों अकेले अकेले आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या पूरे टपल को यूनिकली? तो वो तो कर सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं, करेक्ट? ऑलरेडी देख चुके हैं ये। Yes, sir. Yes, sir. नेम भी ऑलरेडी हम लोग देख कि क्या हुआ, ये जो सुपर कीज है इसका मिनिमल वर्जन क्या है? यही तो है, आईडी और नेम, करेक्ट है ना?
स्टूडेंट्स यहाँ से बात सुन आ रही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंस ये मिनिमल सुपर की है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? कैंडिडेट की। ठीक है, तो अगर कैंडिडेट की पहचानना शुरू करें तो कैंडिडेट की के सेट में क्या क्या रख सकते हैं? नंबर 1 आईडी रख सकते हैं, नंबर 2 नेम रख सकते हैं। इससे एक बात समझ में आ रही है क्या? ये जो कैंडिडेट की है और ये सुपर की है, इन दोनों का सेट को देखिए ध्यान से, आप कुछ कंक्लूड कर पाएंगे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, सबसेट है ना? तो इसका मतलब ये है, हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल कैंडिडेट कीज आर क्या? एसकेज कह सकते हैं सब। ऑल कैंडिडेट कीज आर सुपर कीज कह सकते हैं। और इसका कन्वर्स ये कह सकते हैं कि बट ऑल एसकेज आर नॉट सीकेज। Isn't it? Yes, sir. Conclusion है ना ये? And this is what we get to see in the textbook, है ना? This is what we get to see in the textbook. और अगर हम लोग ठीक से नहीं समझते हैं तो फिर हम लोग बस उसको लर्न कर लेते हैं और बाद में कंफ्यूज होते हैं। So that's why it was very important that we learn this in detail. तो अब बताइए, इस क्लास में हम लोग सब लोग समझ चुके हैं सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है। Is it clear now? briefly explain कर देना। Clear now? Shall we move to the next thing? यस सर। कैंडिडेट की एक्सप्लेन कर दीजिए शॉर्टली। कैंडिडेट की फिर से, ठीक है, ओके। देखिए हम लोगों के पास सॉफ्ट ये सुपर कीज ये तीनों था, आईडी नेम एंड आईडी नेम का कॉम्बिनेशन, राइट? आईडी अलग, नेम अलग और आईडी और नेम एक साथ, ये तीनों थे हम लोग के सुपर कीज। तो डेफिनेशन वाइज जो मिनिमल वर्जन होता है सुपर की का उसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की। तो मिनिमल वर्जन मतलब क्या कि मतलब अगर 1 2 3 चीजें मिला करके, 1 2 3 एट्रीब्यूट मिला करके एक सुपर की बन पा रहा है तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि क्या वो जो 3 एट्रीब्यूट से बना हुआ सुपर की है उसमें से क्या ऐसा कोई 2 है जिसको एक साथ रखें तो भी मतलब वो एक्ट कर सकता है कि हाँ टपल्स यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं उनके हेल्प से। अभी यहाँ वाले केस में हम लोग पास सिर्फ 2 ही था, जो कॉम्बिनेशन था सुपर की का उसमें 2 ही था। तो एक में तो आईडी अकेला था तो वो मिनिमल था तो वो खुद कैंडिडेट की हुआ, ठीक है ना, उसको रख दी कैंडिडेट की वाले सेट में। नेम अकेला था, ऑब्वियसली वो पहले से ही मिनिमल है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए कैंडिडेट की। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो था, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो आईडी और नेम अलग अलग बनेगा, मिनिमल वर्जन्स। तो वो तो ऑलरेडी हम लोग टेस्ट कर चुके हैं कि वो ऑलरेडी कैंडिडेट कीज है। तो इसका मतलब ये कि कैंडिडेट कीज केवल आईडी और नेम है, क्योंकि मिनिमल जो सुपर कीज हैं यही दोनों हैं। तो मिनिमल सुपर कीज इक्वल्स टू कैंडिडेट की, बस वही वाला रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो अब बताइए कि क्या अब आपको समझ में आई ये चीज? यस सर। किसी को डाउट नहीं है? सर ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। सुपर की हो गया, कैंडिडेट की भी हो गया, लेट्स गो टू प्राइमरी की। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे आईडी और आईडी कॉमन नेम ही दिया था इंस्ट्रक्टर का सुपर कीज, वैसे एग्जांपल में यहाँ सिर्फ आईडी का मेंशन किया है। लेकिन क्या सिर्फ आईडी कैंडिडेट की था इंस्ट्रक्टर का? नहीं, वी हैव जस्ट लर्न कि आईडी भी है और नेम भी है, राइट? एटलीस्ट फॉर दिस रिलेशन, ये जो इंस्टेंस है रिलेशन का, इस वाले के लिए तो आईडी और नेम भी है। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे कोई नाम दोबारा रिपीटेड होता, ठीक है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता, एक कोई वैल्यू होता है, इसके नीचे भी 76544 होता, यहाँ पे सिंह लिखा हुआ होता, फिर यहाँ पे मे बी केमिस्ट्री लिखा हुआ होता, ठीक है, और यहाँ पे सपोज 90,000 लिखा हुआ होता। तो अब बताइए इस केस में क्या हम लोग अब नेम को इस लाइक समझ सकते हैं कि इट विल हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग ऑल द टपल्स यूनिकली? नो सर। No, sir. नहीं, बहुत इजी तरीका है देखने का। देखना है कि बस उस गिवन एट्रीब्यूट में ऐसा एक भी वैल्यू है जो डुप्लीकेट है। हाँ है, सिंह 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका मतलब है नेम ऑटोमेटिकली सुपर की नहीं होता। तो ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन जो है आईडी नेम का ये भी नहीं बन पाता, मतलब आईडी ही इकलौता सुपर की होता।
और क्योंकि मिनिमल भी वही रहता, राइट, तो ऑटोमेटिकली कैंडिडेट की भी उस केस में बस आईडी ही होता। ये वाली बात समझ आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. I'm just removing this out, ठीक है, इसको हम कट कर रहे हैं। Let me just cut this. So I assume that this tuple is not there, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग on the next thing which is primary key, ठीक है। तो definition wise primary key उस key को बोलते हैं with the help of which we are able to identify all the tuples of a given relation uniquely, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अपने कीज के लर्निंग को शुरू करते फ्रॉम प्राइमरी की, तो फिर हम लोग को समझने में दिक्कत होती है कि कैंडिडेट की क्या है और सुपर की क्या है। अब हम लोग स्टार्ट किए हैं फ्रॉम सुपर की, सुपर की समझ में आ गया, कैंडिडेट की समझ में आ गया, तो अब प्राइमरी की और कैंडिडेट की दोनों का फंक्शन तो वैसे ही सेम ही लग रहा है ना। देखिए जरा ध्यान से, प्राइमरी की के बारे में बोला जा रहा है कि प्राइमरी की इज दैट की व्हिच इज एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द टपल्स। जो यही काम तो कैंडिडेट की भी कर रहा है ना, है या नहीं, राइट? जो काम प्राइमरी की काम तो कैंडिडेट की भी कर रहा है, फंक्शन वाइज तो वही काम कर रहा है ना। तो प्राइमरी की फिर क्या, एक्चुअली प्राइमरी की हम लोग सेलेक्ट करते हैं हमेशा कैंडिडेट की में से। तो मतलब हम लोग पास यहाँ पे प्राइमरी की का कितना ऑप्शन है, 1 और 2। हम लोग दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं टू सेट एज primary key. From these two given candidate keys, we can select any of these two to be set as the primary key. तो अब लॉजिकली क्या लग रहा है, फ्यूचर में अगर हम लोग रोल्स को इंसर्ट करते चलेंगे based on all the instructors who are teaching in the university, maybe at some point of time there may be an instructor who might have the same name as a previously teaching faculty. ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But we can always attach a unique ID to him or her. ये तो कर सकते हैं? Yes, sir. Yes. It always be unique. हमें इस प्राइमरी की के रूप में कौन से कैंडिडेट की को चूज करना चाहिए? Which is more ideal? ID. Very good. So now you have successfully understood what a super key is, what a candidate key is, and how we can pick the primary key from the candidate key. अच्छा, अगर सपोज यहाँ पे ये जो सिंग वाला एग्जांपल था ना, ये वाला टपल जो भी इरेज कर दिए, अगर ये होता तो उस केस में प्लीज आप लोग बताइए what would have been the super key, what would have been the candidate key, and what would have been the primary key. Please say. Can you repeat the question? If this tuple, यहाँ पे जो टपल था ना सिंग वाला 76544 सिंग, ये यहाँ पे केमिस्ट्री लिखे थे 90,000 लिखे थे, है ना? अगर ये टपल भी यहाँ इस टेबल में होता तो उस केस में सुपर की क्या होता, कैंडिडेट की क्या होता, और प्राइमरी की हम कौन सा चूज करते हैं? ID. ID होता है। ID. वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ गया है सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की के कंसेप्ट्स। आईडी ही बस यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाता है, इसलिए आईडी को ही कंसीडर करते सुपर की। तो इस सेट में बस आईडी ही रहता। जब यही आईडी एक ही एट्रीब्यूट है तो मिनिमल भी यही है, तो ऑब्वियसली मिनिमल एस के इक्वल्स टू कैंडिडेट की, तो मतलब कि आईडी ही कैंडिडेट की होता। और जब कैंडिडेट की एक ही है तो उसी को तो बनाएंगे प्राइमरी की, तो फिर प्राइमरी की भी आईडी ही रहता। वेरी गुड। तो अब आप लोग बताइए, आर यू कॉन्फिडेंट इन द कंसेप्ट्स ऑफ सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की? हैव यू अंडरस्टूड देम प्रॉपर्ली? हाँ बोलिए। Yes, sir. राइट ना? Sir, I have doubt of primary key. यू हैव डाउट ऑफ कौन सा की? Primary key. प्राइमरी की में डाउट है, ठीक है। चलते हैं फिर से हम लोग वापस, ठीक है। हाँ, प्राइमरी की को डेफिनेशन वाइज बोलते हैं दैट एट्रीब्यूट which can uniquely identify all the tuples of the given relation, ठीक है। मतलब उसके हेल्प से हम लोग हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दूसरे वर्ड्स में ये समझ सकते हैं कि प्राइमरी की का हर एक वैल्यू यूनिक होता है। जिस भी एट्रीब्यूट को हम लोग प्राइमरी की चूज करते हैं ना, उसमें कभी ऐसा कोई वैल्यू नहीं रहेगा
जो कि रिपीट किया हुआ रहेगा उसमें। तो यहाँ पे जब हम लोग इस रिलेशन को देख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें वैल्यूज कभी रिपीट नहीं हुआ है। एक तो है आईडी और दूसरा है नेम, है ना? Yes, sir. है ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आईडी और नेम दोनों में से किसी को भी हम लोग प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते हैं। इट इज अप टू अस। तो हम लोग जो है बस लॉजिकली डिस्कस किया आपस में कि नेम तो फ्यूचर में रिपीट हो सकता है। अगर सिर्फ इतने ही दूर के टेबल की बात करें ना, अगर सिर्फ इस इंस्टेंस की बात करें तो इसके लिए तो हम लोग आईडी भी चूज कर सकते हैं एज प्राइमरी की और नेम भी चूज कर सकते हैं एज प्राइमरी की, और आंसर हम लोग का 100% सही होगा। If we are saying as the answer for what should be the primary key, so we can say that we can choose ID also and we can choose name also. लेकिन in the long run, if we try to think about the future, तो logically ऐसा होता है कि names repeat हो सकते हैं future में, लेकिन ID हम लोग यूनिक रखते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये conclude किए कि let's keep when we have options of like keeping any of these two, तो क्यों ना हम लोग ID ही को रखें as primary key। तो अब बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now I have a let's question. move on to the next key, which is foreign key. Super key हो गया, candidate key हो गया. We have done the primary key part. Now comes the foreign key. ठीक है? तो foreign key का concept समझने के लिए हम लोगों को दो tables required होंगे, दो tables, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे देखिए, जैसे यहाँ पे ये लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग है, ठीक है ना? आई एम इरेजिंग एवरीथिंग है। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, जब कैंडिडेट की डिफाइन किए तो प्राइमरी की डिफाइन करने का क्यों जरूरत पड़ा? देखिए, एक्चुअली में ये सारे कंसेप्ट्स हैं ऑलरेडी देयर, मतलब कि एक कैंडिडेट की है, एक प्राइमरी की है, राइट? एक सुपर की है हम लोगों के पास पहले ही से। कैंडिडेट्स की हम लोग देखे कि एक ऐसा भी दो केस हम लोग यहाँ पढ़े, अभी दो केसेस देखे। एक केस सिर्फ डिस्कस किए जहां पे ये वाला टपल नहीं था, तो उस केस में तो हम लोग के पास कैंडिडेट की दो आ रहा था, आईडी और नेम। तो उस समय में हम लोग के पास ये ऑप्शन था कि इन दोनों में से किसी एक को वो मेन की बना सकते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग सारे के सारे टपल्स को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है ना? तो इस समय तो किसी एक को ही पिक करना है, तो जिस एक को हम लोग पिक कर रहे हैं उसको एज अ डिफरेंट एंटिटी शो करने के लिए, as a different concept शो करने के लिए we are using this name, this nomenclature primary key, ठीक है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर अगर ये वाला जो टप्पल था, ये जो सिंग वाला टप्पल था एक्स्ट्रा जो ऐड किए थे, इस वाले केस में तो सुपर की भी आईडी ही है, कैंडिडेट की भी आईडी ही है और प्राइमरी की भी आईडी को ही बनाना पड़ेगा, तो उस केस में प्राइमरी की और क्या जरूरत है? लेकिन वो जो सेकंड सिनेरियो हम लोग देखे ना, जहाँ पे कैंडिडेट कीज मोर देन वन हो सकते हैं, तो उसमें तो किसी एक ही को चूज करेंगे ना हम लोग एज द, तो उसको हम लोग नेम किए हैं कि दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड प्राइमरी की। और इस तरह से जो है हम लोग इन दोनों कंसेप्ट्स को थोड़ा सा हल्का सा एक बहुत ही फाइन लाइन से डिस्टिंग्विश कर पाए हैं। अब बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर। ठीक है। Now let's get to the foreign key aspect, ठीक है? तो foreign key के बारे में कंसंट्रेट करने के लिए like I said कि हम लोग को यहाँ पे दो रिलेशन चाहिए होगा, ठीक है? एक रिलेशन तो हम लोग पास पहले से है ही, लेट मी डिलीट ऑल द इंक। ये सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की, ये समझने के लिए आई विल हैव टू कीप ऑल द इंक हियर ऑन दिस स्लाइड। लेकिन अगर वो क्लियर हो चुका है तो आई कैन इरेज दिस ऑल इंक इन दिस ऑन दिस स्लाइड सेफली। तो इरेज करते ना, ठीक है, ठीक है, ओके। Now let's see about foreign key। तो foreign key का कंसेप्ट ये है बस कि foreign key एक गिवन टेबल में foreign key वो एट्रीब्यूट है जो एट्रीब्यूट इस वाले रिलेशन में तो बस एक नॉर्मल सा एट्रीब्यूट है, लेकिन वो किसी दूसरे अच्छा, somebody else has again joined and noise is coming. Please आप लोग अपना माइक
ऑफ रखिए व्हेन यू आर लाइक ज्वाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेन की कौन सा है, प्राइमरी की कौन सा है, यहाँ पे आईडी है ना, आईडी इज द प्राइमरी की फॉर इंस्ट्रक्टर रिलेशन, ठीक है। लेकिन सपोज एक और यहाँ पे रिलेशन हो, ठीक है, एक और रिलेशन हो यहाँ पे, उस रिलेशन का नाम सपोज अगर डिपार्टमेंट है, ठीक, और वहां पे लेट्स जस्ट से कि दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक का नाम है डिपार्टमेंट नेम, एक का नाम है बिल्डिंग, ठीक है। और सपोज की जगह तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन सपोज यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम लेट्स जस्ट से कि बजट है, ठीक है। जैसे हर डिपार्टमेंट को बजट दिया जाता है ना कि हाँ दिस इज योर बजट, आप इसके हेल्प से आप अपने तो यहाँ पे ये एक रिलेशन है बाय द नेम ऑफ डिपार्टमेंट। यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग और बजट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट्स लिस्टेड है, तो कोई एक भी डिपार्टमेंट एक ही बार यहाँ लिखाएगा, इजंट इट? ये बात सही है ना, मतलब कि एक बार फिजिक्स लिखाएगा डिपार्टमेंट क्या है यहाँ पे, यहाँ से देखिए आप, एक बार फिजिक्स लिखाया, एक बार फाइनेंस लिखाया, एक बार हिस्ट्री लिखाया एंड सो ऑन। इसी तरह से जैसे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस लिखाया, और इसी तरह से नीचे भी, ठीक है। बिल्डिंग में सपोज कि ये कौन से बिल्डिंग में लाई कर रहा है, सपोज कोई है ऐसा कि रमन बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग का नाम है रमन बिल्डिंग, ऐसे, फिर ऐसे इसका नाम है सपोज गंगा बिल्डिंग। तो इस तरह से बिल्डिंग्स का नाम है। ये भी कोई 2 डिपार्टमेंट हो सकता है कि एक ही बिल्डिंग में हो, सपोज फाइनेंस और हिस्ट्री डिपार्टमेंट गंगा बिल्डिंग में ही है, और सपोज कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स एक ही में है, रमन बिल्डिंग, ठीक है। सिमिलरली बजट भी सेम हो सकता है कि फिजिक्स का और से हिस्ट्री का, नहीं फिजिक्स का फाइनेंस का सपोज कि 5 लाख है, ठीक है, फिजिक्स का और फाइनेंस का सपोज 5 लाख है, हिस्ट्री का सपोज 4 लाख है, कंप्यूटर साइंस का सपोज 6 लाख है, ठीक है। तो और सपोज मतलब कि ऐसे भी कर लेते हैं कि यहाँ वैल्यूज यूनिक ना लगे, अच्छा यहाँ पे तो 2 हैं ही जो यूनिक नहीं है, रिपीटेड है। तो अब बताइए डिपार्टमेंट वाले केस में ऑब्वियसली डिपार्टमेंट नेम जो है वो प्राइमरी की है, यही सेट करेंगे हम लोग, डिपार्टमेंट नेम है या नहीं, इज इट करेक्ट? यस सर। ठीक है, अब यहाँ आप नोटिस कीजिए, दिस डिपार्टमेंट नेम इज अ सिंपल एट्रीब्यूट इन द इंस्ट्रक्टर रिलेशन, बट इट इज रेफरेंसिंग, ये रेफर करता है टू अ प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। मतलब सिंपल सी बात है कि वो एट्रीब्यूट जो आपके रिलेशन में एक सिंपल सा एट्रीब्यूट है, लेकिन वो एक दूसरे रिलेशन में एज अ प्राइमरी की है, तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम लोग बोलेंगे फॉरेन की। समझ में आ रहा कुछ? यस सर। यस सर रिपीट देखिए, फॉरेन की is that attribute which is just a simple attribute in the main relation which we are talking about, but it is acting as a primary key in another relationship. Sorry, I am using the word relationship, I should have used the word relation, है ना? Foreign key is that attribute which is a simple attribute in a given relation, but it is the primary key in another relation. यहाँ पे आप देखिए इस एग्जांपल को बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम बस एक सिंपल सा एट्रीब्यूट है, लेकिन यही डिपार्टमेंट नेम रेफर करता है एक दूसरे टेबल, एक दूसरे रिलेशन को, जहां पे वो खुद एक प्राइमरी की है। तो ऐसे एट्रीब्यूट को उस पहले रिलेशन में फॉरेन की बुलाएंगे। अब समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, तो इससे 2 बातें और समझ में आ रही है, रेफरेंसिंग रिलेशन और रेफरेंस रिलेशन। रेफरेंसिंग रिलेशन जो रेफर करता है
तो वो कौन हो गया इस केस में? ये इंस्ट्रक्टर रिलेशन, रेफरेंस रिलेशन कौन है? जो रेफर किया गया है, तो वो इस केस में कौन सा है? डिपार्टमेंट। बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। सो आई बिलीव नाउ द कंसेप्ट ऑफ कीज इज क्लियर टू यू ऑल, है ना? सुपर की समझ में आ गया, कैंडिडेट की समझ में आ गया, प्राइमरी की समझ में आ गया, फॉरेन की समझ में आ गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस इवन इन लाइक प्लेसमेंट टाइम व्हेन यू आर सेइंग कि हाँ डीबीएमएस, वी हैव लर्न डीबीएमएस, और people will assume that since you are a BTech CSC graduate, so you are obviously knowledgeable in the core computer science subjects. DBMS is one of them. तो वो लोग आपसे ये पूछ सकते हैं, अच्छा just tell me what is the difference between a primary key and a foreign key? So there you should say कि sir foreign key refers to that key, that attribute with the help of which we are able to easily or uniquely identify all the tuples of the given relation. On the other hand, foreign key refers to that key which may act as a simple attribute in the given relation, but it will be acting as a primary key in another relation. ठीक है? बात समझ आई? Excuse me, sir. Yeah. Sir, can you please explain referencing and reference relationship? Yeah, sure. Yeah, sure. ठीक है। वापस आते हैं इस एग्जांपल पर। यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे कौन से हम लोग एट्रीब्यूट को फॉरेन की बोल रहे हैं? फॉरेन की का कंसेप्ट इज क्लियर? द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की इज क्लियर टू यू ना? Yes, sir. फॉरेन की का कंसेप्ट तो क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। So which attribute is acting here as the foreign key in this relation? Instructor? Department name. डिपार्टमेंट नेम? डिपार्टमेंट नेम। हाँ, तो यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट नेम्स लिखा हुआ है, all of them must be also in the department name attribute of the department relation होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा एक भी डिपार्टमेंट नेम नहीं होना चाहिए जो एक्चुअली में डिपार्टमेंट रिलेशन में लिस्टेड ही ना हो, तभी तो सेंस बनेगा ना। Only then the relation makes some sense, isn't it? Yes, sir. नेम सर यूनिक ना हो ना। हाँ, यूनिक नाम यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे तो रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन रख क्या रहे हैं? डिपार्टमेंट वो किस बिल्डिंग में है, उसे क्या बजट है, तो क्या उसके लिए रिपीट करने की जरूरत है कभी भी टपल को डिपार्टमेंट रिलेशन में? नो सर। बस तो यही बात है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम रेफर कर रहा है किसको? इसको, मतलब कि ये वाला रिलेशन रेफर कर रहा है इस रिलेशन को, यही मतलब हुआ ना। तो रेफरेंसिंग रिलेशन यहाँ पे क्या हो गया ऑटोमेटिकली? इंस्ट्रक्टर हु इज ट्राइंग टू रेफरेंस, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर रिलेशन हो गया रेफरेंसिंग रिलेशन। तो रेफरेंस रिलेशन कौन सा हो गया? Again on, please switch it off, please switch it off. Your voice is not clear. It is up to us to maintain the sanctity of our platform. निकालना। Please switch off your mic. We already have just 1 minute and you are trying to like waste that. मत कीजिए ऐसा. Let's focus here. So like I was saying, instructor relation will act here as the referencing relation and the department relation is acting as the referenced relation. Is it clear now? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. So now anybody has got any doubt? हम लोग आज practical sessions भी किए, we have done our discussions also, right? अच्छा, did you like go through that Infosys Springboard course? Did you like anybody went through that? Yes, sir. Yes. Yes. Everybody, I request everybody to go through that so that you are able to get the certificate and then submit it. Okay. First of all, just go through that The course. certificate is not coming. It will is come. not It will come. showing. Badge आप लोग को मिल गया ना अभी? You have got the badge ना? Yes, sir. Yes, sir. You have passed the test. Yes, sir. You must have got the badge. Then I got the certificate. हाँ, आप थोड़ा वेट कीजिए. Whatever email you have used for registration ना, वहाँ पे आ जाएगा.
आप लोग एक और ऑलरेडी कर चुके हैं ना इन्फोसिस स्प्रिंग बोट का कोर्स, तो यू मस्ट हैव नोटिस कि उसका भी सर्टिफिकेट थोड़ा लेट से आया था. Like sometime mostly it has to like come after the lapse of say 24 hours, but कभी-कभी टाइम लग रहा है. सर नहीं है. Okay, it will come. ठीक है ना? Can you please repeat the name of that course? Acha, I'll surely do it. Just a moment. Just give me a moment. I'll just repeat once more. It was in session 1. Yeah. I'll share it once more. Okay, are you able to see it? I will just make it full screen. Sir, it is clear. Database fundamentals, database concepts. The course duration is very short, 44 minutes, 19 seconds. Course instructor is Alex Barr. You have to watch all the videos. They are very small and score a minimum of 70% in the test. That's all. Okay? So now with this, we can conclude our session for the day. We are already like beyond our stipulated time. It's 11:16 now. So take some rest and be there for the 11:30 class. Okay? So all of you remember to either stay here in this meeting, because this same meeting will be used for that class. You already know that, right? So you can either join at say 11:25 a.m. for the 11:30 class, or you can continue to stay in the meeting. All right, everybody. Thank you so much for the active participation. Thank you, sir.